Dear Lord, thank you for gracious time. स्वर्गीय पिता, इस अनुग्रहित समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Receive the glory through this gathering. और इस हम लोगों के इकट्ठा होने से प्रभु आपको महिमा मिले। Please work here through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे बीच में काम कीजिए। Now, please fill us with the Spirit. और आत्मा से हम लोग को भर दीजिए। Please open our spiritual eyes to see अरे, your words free. हमारी आत्मिक आंखों को आप Mm. खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें। Uh, in Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। All right. Second lecture. Let's start second lecture. चलिए हम दूसरे लेक्चर के Uh, लिए जाते हैं। second lecture's scripture is 1 Corinthians chapter 16, verses 15 to 20. पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 15 आयत से 20 आयत तक। Yeah, let's turn to 1 Corinthians 16, verses 15 to 20. आइए पहला कुरिन्थी 16 अध्याय 15 से 20 खोलेंगे। All right, I'll read for you. Now I urge you, brothers and sisters, the मैं आप household of Stephanus, that they are the first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to ministry to the saints. ए भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे क्या से पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहता है। And verse 16, I urge that you also be subject to such as these and to everyone who helps in the work and labors. इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। And verse 17, I rejoice over the coming of Stephanus, uh, Fortunatus, and Achaicus, because they have supplied what was lacking on your part. मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अक्युकुस के आने से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। And verse 18, for they have refreshed my spirit and yours, therefore recognize such people. 18, उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसे लोगों को मानो। The churches of Asia greet you, Aquila and Prisca greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. आसिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किला का उनके घर की कलीसिया को भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। All the brothers and sisters greet one another with a holy kiss. सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो। अच्छा, Yeah, the title is One Team. अब अब इस सेकंड लेक्चर का जो विषय है वो है एक टीम। एक Instruction, the blessing of meeting. मतलब मिलने की आशीष क्या होती है। Missions is not just a church activity, मिशन जो होता है वो एक कलीसिया का ही गतिविधि नहीं है, it's spiritual warfare. ये एक आत्मिक युद्ध है। For this reason, we must live 24 hours with Christ. और हमें इसकी सामर्थ को मसीह से हमेशा जोड़ना है। Pray 24 hours in the Spirit 24 घंटे आत्मा में प्रार्थना करनी है। and carry the mission of God's kingdom 24 hours a day. 24 घंटे परमेश्वर के राज्य को लेकर चलना है।
As pastors and evangelists, we cannot fight alone. मसीह के सेवकों, इवांजलिस्ट होने के नाते हम लंबे समय तक लड़ नहीं सकते हैं। God raises up a team that works with us in the mission field. और एक ऐसी टीम थी जो मेरे साथ सेवकाई क्षेत्र में थी। And when that team is united in Christ, we'll see the kingdom of God established in our regions, churches, and even और nations. और जब हम देखते हैं कि वो टीम हमारे साथ सेवा में कार्य करती है तो हमारे क्षेत्रों में, हमारे इलाकों में कलीसियाओं की स्थापना होती है। Now, let's begin by learning what kind of team God uses to fulfill his mission. चलो फिर अब सीखते हैं कि किस प्रकार की टीम परमेश्वर चाहता है कि उनकी उनकी जो सेवा है वो पूरी हो सके। Yeah, before we become part of a powerful mission team, we must personally stand as disciples who are rooted in the five floors. और हमको पांच जो एक फ्लो होते हैं उनको इसमें समझने की आवश्यकता है, इससे पहले कि हम इस टीम के बारे में आगे बढ़े। Yeah, first, floor of the word. जो परमेश्वर के वचन को समझना, Are confirming the word being fulfilled in your life daily? या परमेश्वर के वचन को पुष्टि करना, या प्रतिदिन उसको पूरा करना। We should examine that. इसको हमें अपने जीवन में जांचना है। Yeah, you are preaching every week. आप हर एक सप्ताह प्रचार करते हैं। As a preacher, we must examine the fulfillment of the word. हमें परमेश्वर के वचन को पूरा होने को जांचना है। Yeah, as a result, we must become a witness before the और फिर congregation. इसका नतीजा ये होना है कि लोग मसीह के गवाह हों। And second, flow of prayer. पहला है वचन का बहाव, दूसरा है प्रार्थना का बहाव। Are receiving guidance and strength from daily prayer. दिन प्रतिदिन की प्रार्थना से हमें मार्गदर्शन और सामर्थ मिलता है। Yeah, we must stand before the congregation as witnesses of the people who are receiving answer to prayer. जिन लोगों की प्रार्थना का उत्तर मिलता है उनके लिए हमें हमें खड़ा होना है। Yeah, now God is answering to our prayer. और अभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। Let's examine that. आइए इस बात को भी हम जांचें। And third, flow of evangelism तीसरा, सुसमाचार का बहाव। are connected to the mission field. क्या हम सेवकाई क्षेत्र से जुड़े हैं? Is evangelism continuing through you? पार्डन? Yeah, we are making disciples who can evangelize in their fields. हम सुसमाचार हम चेलों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो लोग हमारे ही सेवकाई क्षेत्र में अ, हमारी मदद कर सकें। So let's become witnesses before our congregation. और इसीलिए हम इसको अपने वार्तालाप में ध्यान रखें। And fourth, flow of the field. सेवकाई क्षेत्र का बहाव। There is a spiritual flow in our fields. और हमारी सेवकाई क्षेत्र में आत्मिक बहाव होना चाहिए। Can you discern what is spiritually happening in your ministry field? आपको ये जांचना है कि आपकी सेवकाई क्षेत्र में क्या हो रहा है। Now, we must not be deceived by Satan. और हमें किसी भी पाप के द्वारा धोखे में नहीं पड़ना है। We must discern what is the works of the Spirit and works of the Satan. हमें इस बात का जरूर जानना है कि आत्मिक कार्य क्या है और
दुष्ट के कार्य क्या हैं। Yeah, don't be deceived. धोखे में मत आइए। Yeah, the Holy Spirit is working in our fears now. पवित्र आत्मा हमारे सेवकाई क्षेत्र में अभी काम कर रहा है। Yeah, let us follow the flow of the field. आइए हम अपने सेवकाई क्षेत्रों का प्रभाव या बहाव को देखें। And and fifth is the flow of the age. और पांचवा है इस युग का प्रभाव। Do you understand God's timetable for world evangelization? क्या आप और मैं परमेश्वर के समय सारणी को, सुसमाचार जो दुनिया में फैलाना है उसको समझते हैं। Yeah, this is a time when doors are opening to 237 nations and 5,000 people groups, the tribes. ये वो समय है जहां 237 और 5,000 जनजातियों के लिए सुसमाचार का दरवाजा खुल रहा है। I think now is the golden time of golden missions age. मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए ये सुनहरा मौका है अभी। Yeah, let's prepare our spiritual vessels so we are ready to be part of God's strategic teams. और आइए हम लोग तैयार रहें क्योंकि हम परमेश्वर की गतिविधि की टीम के सदस्य हैं। Now, let's make a resolution to be a team that revives the church. आइए हम एक संकल्प लें, हम एक ऐसी टीम बन जाएं जो कलीसिया को पुनर्जीवित करती है Yeah, या जागृत God, करती है। yeah, our God is calling for teams that will revive the church, just like in the early church era. परमेश्वर इसलिए हमको बुला रहा है ताकि हम उसकी कलीसिया को रिवाइव कर सकें जिस प्रकार से प्राचीन कलीसिया करती थी। Yeah, in First Corinthians chapter 16, verses 15 to 18, we can see very important workers, the household of Stephanus. और पहला कुरिन्थी 16 का 15 से 18 में हम स्तेफनास के घराने को देख सकते हैं। And they were the first fruits of Achaia. वो अखया के पहले विश्वासी थे, फ्रूट फल थे। They devoted themselves to serving the saints. उन्होंने अपने आप को इस तरीके से समर्पण कर दिया ताकि वो संतों की सेवा कर सकें। Yeah, they have resolution to serve the church. उन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि वो कलीसिया की सेवा करेंगे। They filled with what others lack. और उनको किसी चीज की घटी नहीं हुई। Yeah, that is why they refreshed both Paul and the Corinthians believers. और फिर उनके जीवन के द्वारा और पौलुस और जो विश्वासी थे बड़े ही खुश हो गए। This was a team that strengthened and revived the Corinthian church. ये एक टीम का वजह से हो पाया जिसने कि रोम की कलीसिया को फिर से जागृत कर दिया। We need this team. और हमें ऐसी टीम चाहिए। Yeah, I bless you. Have this wonderful team in your church. मैं आपको आशीषित करता हूँ और चाहता हूँ कि All आपके right. कलीसिया में इस प्रकार की एक अच्छी टीम हो। And let's look at First Corinthians chapter 16, verses 19 to 20. ये पहला कुरिन्थी 16 का 19 से 20 देखें। There is Aquila and Priscilla. यहाँ पर अक्विला और प्रिस्किला है। They were willing to risk their lives for Paul. और वो पौलुस के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार थे। Also, they opened their home as a church. और उन्होंने अपने घर को एक कलीसिया के लिए खोल दिया। Yeah, and they supported the churches of Asia. और उन्होंने एशिया के जो कलीसियाएं थी उनकी मदद की। Yeah, they helped all reader churches Paul planted. और जिन कलीसियाओं को पौलुस ने स्थापित किया था उन लोगों में उनका बड़ा योगदान था।
Their team revived the field of Ephesus इफिसियों की कलीसिया को भी उन्होंने ऐसे ही किया, and Corinth and Rome. और कोरिन्थियों और अन्य जगह की कलीसिया को भी उन्होंने इसी प्रकार से रिवाइव किया। If you want to see revival, we must raise up such mission teams again in our churches today. अगर आप भी अपनी कलीसियाओं में, आस पड़ोस में और स्थानों पर जागृति चाहते हैं तो इस प्रकार की टीम को हमें There is आवश्यकता है। biblical evidence of mission teams. और ये बाइबल आधारित है कि मिशन में इस प्रकार से टीमें थी। All throughout Scripture, God worked not only through individuals but through teams. पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर केवल व्यक्तियों एक एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन टीम के द्वारा भी काम किया है। Yeah, for Egypt missions, God made a team with Jochebed, Moses, Aaron, Jethro, Joshua, Caleb, Rahab. अगर हम अ, मिस्र के मिशन के बारे में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने योकेबेद, मूसा, हारून, यत्रो, यहोशू, कालेब और राहेब की एक टीम बनाई। And for Philistine missions, God made a team with Jesse, Jesse, David, Hannah, Samuel. और जब हम फलिस्तीनी मिशन को देखते हैं तो परमेश्वर ने एक टीम को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे है, दाऊद है, हन्ना है, सैमुअल है। And also for Aram missions, God made a team with Obadiah, Eliza, Elisha. और आराम का जो मिशन था उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक टीम बनाई जिसमें ओबद्याह, एलिजा और एलिशा था। And for Babylon missions, Daniel and his three friends, Esther's, were prepared. और बेबीलोन के मिशन के लिए जब हम देखते हैं तो दानियल उसके दोस्त और दूसरी तरफ एस्तर की टीम को हम देखते हैं। And for world missions, God made the Antioch church team in Acts chapter 13, verse 1. दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों का काम 13 का एक में एक टीम अंत्योक में स्थापित की। Yeah, there are 5 members 5 सदस्य थे वहां, containing Paul and Barnabas. पौलुस और बरनबास के साथ। These teams had one thing in common. और ये जो टीम थी इनमें एक बात सामान्य थी, They were centered on God's covenant. वो परमेश्वर की सामर्थ से केंद्रित थे, They were filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, They were used to save an age. और वो लोगों को बचाने के लिए तैयार थे। Okay, let's move to main message. मुख्य संदेश की ओर चलते हैं। Let's form one team that saves a region, nation, and people group. आइए हम एक ऐसी टीम का आयोजन करें या बनाएं जो राष्ट्र, लोगों की जनजातियों को या एक क्षेत्र को बचा सके। Let's go deeper into what this one team looks like. आइए हम बड़ी गहराई से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक टीम किस प्रकार की होती है। They are one team that prays 24. एक टीम वो होती है जो 24 घंटे प्रार्थना करती है And receives answers 25 और 25 घंटे प्रार्थना का उत्तर उनको मिलता है and leaves eternal monuments. और अनंतता के लिए वो जीते हैं। First, there is the 24 hours team. और पहला है 24 घंटे की टीम। They were connected
constantly, spiritually, 24 hours. उनको आत्मिक तौर से सही कर दिया गया था ताकि वो 24 घंटे तैयार रहें। This team is united with the pastor through 24-hour prayer. और ये टीम एक पासवान के साथ जुड़ी हुई होती है जो 24 घंटे प्रार्थना में होते हैं। Is it a team that constantly prays and remembers each other before God? ये वो है जो निरंतर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को परमेश्वर के सामने स्मरण करते हैं प्रार्थना में। Yeah, we can find evidences. और हम इसके प्रमाण को भी देख सकते हैं। Uh, Listen to Romans 1 verse 9. रोमियो 1:9 को देखें। Paul says he makes mention of the church unceasingly. और पौलुस यहाँ पर एक कलीसिया का वर्णन करता है। And in Philippians 1 verses 3 to 4, फिलिपियों 1:3 से 4। always offering prayer with joy. और आनंद के साथ प्रार्थना को करता है। And listen to Colossians 1 verse 3. कुलुस्सियों 1:3। Paul was praying always for the saints. और पौलुस संतों के लिए प्रार्थना करता है। And Second Thessalonians 1 verse 3, दूसरा थिस्सलुनीयों 1:3। there is God expressed like this, और इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। giving thanks for increasing faith and love. धन्यवाद के साथ वो प्रार्थना करता है कि लोगों का प्रेम और बढ़ता जाए। Yeah, and Second Timothy 1 verses 2 to 3, दूसरा तिमुथी 1:2 और 3। Paul prayed night and day for Timothy. और तिमुथी के लिए प्रार्थना करता है। And Titus 1 verse 4, तीतुस 1:4। Paul said to Titus, "You are my true son." पौलुस तीतुस को कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। They shared a deep spiritual relationship with co-workers in faith. तो कहने का मतलब है कि वो अपनी टीम के साथ एक बहुत ही विशेष संबंध बनाकर रखता है। Like this, let's become a team that prays for each other constantly, 24 prayer team. तो 24 जो प्रार्थना की टीम होती है वो एक दूसरे के प्रति चिंतित होती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। I bless you. God give you this wonderful team to you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपको आशीषित करता हूँ, प्रभु आपको ऐसी अच्छी टीम दे। And we need the 25 team और जो 25 टीम होती है enjoying the power of the throne. जो सिंहासन का आनंद उठाती है। The 25 hours team goes beyond time and space. जो 25 टीम होती है वो समय और स्थान से भी बढ़कर होती है, परे होती है। It's a team that experiences the spiritual power of the throne. जो कि ऐसी टीम 25 होती है जो परमेश्वर के सिंहासन को अपने जीवन में अनुभव करती है। They establish the three courtyards tabernacle spiritually. वो 3 आंगनों को अनुभव करते हैं जो मिलाप वाला तंबू होता है। Yeah, the court of prayer and Gentiles and second next generations. वो उन तीनों जो आंगन होते हैं या कोर्टयार्ड होते हैं प्रार्थना, अन्य जाति और आने वाली पीढ़ी का उसका आनंद लेते हैं। They open the Friday, Saturday, Sunday worship system, continuous spiritual flow. और वो क्या करते हैं कि शुक्रवार से रविवार तक अपने आत्मिक
कार्यक्रम को कंटिन्यू करते रहते हैं। and they prepare for eternal things, वो अनंतता के लिए तैयारी करते हैं holy meditation, and communion with God. और वो परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन को अर्पण करते हुए पवित्र मनन को करते रहते हैं। Yeah, and third, we need the eternal team. और फिर तीसरी हमें चाहिए कि अनंतता की टीम, जो हमेशा की टीम बनी होगी, Yeah, living monuments for the next generation. जो आने वाली पीढ़ी के लिए जीती है। This is a team that lives eternal fruits and monuments of faith. विश्वास के साथ अनंतता के लिए ये टीम जीती है। Uh, there are five things. इसमें 5 बातें हैं। They had hidden covenant with God. उनके उनके जीवन में परमेश्वर से एक छुपा भी एक मतलब छुपी हुई वाचा होती है। Yeah, they are rooted in God's unchanging promise. वो परमेश्वर की कभी बदलने वाली जो प्रतिज्ञा होती है उसमें बंधे होते हैं। Yeah, second, they are a secret squad. और वो गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से सहयोग करते हैं। Yeah, they quietly labor behind the scenes for the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के लिए पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। And third, remnant ministers. और तीसरा है रेमनेंट का मिनिस्टर। They raise the next generation of gospel workers. और वो सुसमाचार कर्ताओं को तैयार करते हैं। And fourth, holy missions. और पांचवे है पवित्र मिशन। They build the system of the church and missions. और वो कलीसिया के तौर तरीकों को आगे बढ़ाते हैं। Yeah, and fifth, living monuments. और पांचवा है लिविंग मोन्यूमेंट्स, मतलब एक Through their तरीके से prayer, service, and offering, they leave a legacy. वो अपने प्रार्थना, आराधना, भेंट के द्वारा एक इतिहास रच देते हैं। All right, let's move on to conclusion. आइए हम इसके निष्कर्ष को देखें। Uh, there is the way to receive 300 percentage answer in your ministry. अपनी सेवकाई क्षेत्र में 300% उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। Yeah, let me give one final challenge. एक चुनौती मुझे आपको देने दीजिए। Yeah, how can you receive the 300 percentage answer in your ministry? कैसे आप 300% अपनी सेवकाई क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं? Yeah, have 100 percentage spiritual imprint, root and nature. 100% अपने जीवन में एक 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 तरीके से हमको इसको प्लांट कर लेना है, जड़ पकड़ Yeah, लेनी है 100%। yeah. Let's turn to Philippians chapter 3. फिलिपियों 3 अध्याय Look at verse 7. 7वें आयत को देखते हैं। Count all worldly gains as loss. किस प्रकार से दुनिया की चीजें टिकी हैं। And verse 8. 8वीं आयत, Treasure the surpassing value of knowing Christ. और जो मसीह को जानना है वो इन तमाम बातों से बढ़कर है। Yeah, verse 9. 9वीं आयत, Seek righteousness that comes through faith in Christ. उस धार्मिकता को ढूंढो जो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आती है। Yeah. And second, let's enjoy 100% of your spiritual background. और दूसरा, 100% अपने आत्मिक जीवन की पृष्ठभूमि का भी हम आनंद लें। Now look at verse 12. 12वीं आयत देखें। Press on to take hold of your heavenly calling. मैं अपनी स्वर्गीय बुलाहट के आधार पर आगे बढ़ता रहता हूँ।
And verse 14, 14 आयत, and run toward the goal. मैं अपने निशाने की ओर चलता रहता हूँ, बढ़ता And रहता हूँ। verse 20, 20 आयत, remember that your true citizenship is in heaven. आप और मैं याद रखें कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, Yeah, please enjoy those things. और हम इस बात को ध्यान रखें Our spiritual background. कि ये हमारा आत्मिक बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है। And also, let's use 100% of our spiritual authority. और साथ ही साथ 100% हम अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। Yeah, let's look at Philippians chapter 3, verse 21. फिलिपियों 3 का 21 को देखते हैं। Yeah, everything submits to the name of Jesus. सब कुछ यीशु मसीह के नाम में दे दो। Yeah, in John 14, verse 14 says, ask in his name and he will do it. यूहन्ना 14 का 14 में कहते हैं कि मेरे नाम से मांगो और तुम्हें मिलेगा। And Mark chapter 16, verse 17 says, cast out demons in his name. मरकुस 16 का 17 में लिखा है कि उसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। Yeah, Acts chapter 9, verse 15, we can see the Paul's, God's plan for the Saint Paul. और प्रेरितों का 9 का 15 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की योजना संत पौलुस के लिए, Here be my witness and carry my name. मेरा गवाह बन और मेरे नाम को आगे लेके चल। Yeah, this is your spiritual authority. और यही हमारा आत्मिक अधिकार है मेरे प्रियो। Please use it. Yeah. तो प्राप्त कीजिए। You have Jesus' name. यीशु के नाम है हमारे पास। Yeah, wherever you go with this authority, darkness will break. जहां कहीं आप और मैं इस अधिकार के साथ जाएंगे, अंधकार भाग जाएगा And the light of Christ will shine. और यीशु की ज्योति वहां चमकेगी। In the name of Jesus Christ, you can have a victory. यीशु के नाम में आप इसमें विजयी हो सकते हैं। You are Jesus' workers. आप यीशु के कार्यकर्ता हैं He will be with you always. और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। Yeah, make a team for evangelization of India. इसीलिए भारत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक टीम को बनाइए। I think you are a precious team. और मैं सोचता हूँ कि आप एक बहुमूल्य टीम हैं। Make another teams. एक दूसरी टीम बनाइए। God will attach you. परमेश्वर आपको मदद करेगा। I bless you and pray for you continually. मैं आपको आशीष देता हूं और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूं। All right, let's pray. दुआ करें। Thank you, God. धन्यवाद प्रभु। You are calling one team in this generation. आप इस पीढ़ी में एक टीम को बुला रहे हैं। Please help us to respond to your calling. प्रभु मदद कर कि हम आपकी बुलाहट का उत्तर दे सकें। Let's become one team used by you. प्रभु हमें एक टीम बना ताकि आप हमको इस्तेमाल कर सकें। Please raise up teams that carry out missions through ministries. प्रभु ऐसी टीम को तैयार करने में मदद करें जो सेवकाई को बढ़ा सके। Let these teams revive the church, the next generation, and the world. प्रभु प्रार्थना है कि ये जो टीम है सेवकाई को रिवाइव कर सके, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी को प्रभु ये एक आगे बढ़ा सके। Lord, please bless your servants to continue gospel movement in India. प्रभु अपने सेवकों की आप मदद करें ताकि भारत में सुसमाचार का आंदोलन बढ़ता जाए। Strengthen them, give very important disciples. प्रभु आप इन्हें बल दें और महत्वपूर्ण चेलों को दें। Lord, please make them to making another precious team for missions. और प्रभु मदद कर इनकी कि ये सेवकाई के लिए एक और टीम बना सकें। Lord, please raise the evangelism team in India. प्रभु
भारत में इवांजलिज्म टीम को आप तैयार करें। Lord, please raise many disciples and many teams for missions. ओ प्रभु, भारत में सेवकाई के लिए बहुत से मिशनरियों के लिए बहुत टीम को, बहुत डिसाइपल को तैयार करने में मदद करें। Lord, please give revivals to their churches. ओ प्रभु, इनकी कलीसियाओं को आप जागृति दीजिए। We pray and bless in Jesus' name. हम प्रार्थना आशीष के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. 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 थैंक यू पास्टर Yeah. See you him again. sharing God's word. Yeah. So thank you very much. We all are blessed. Yeah. I have another Yeah. appointment, so Okay. I will go. Yeah. Thank you for sharing God's word. Okay. Yeah. See you next time. Oh, thank you. Yeah. God be with you. Thank you. Yeah. Thank you. Have a victory.